ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਕੰਬੋਜ ਕਲਾਸਿਸ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਨ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਬਾय 1 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਤੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ B ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਥਾਨ A ਹੈ, ਸਥਾਨ B ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਥਾਨ A ਤੋਂ ਸਥਾਨ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਦੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਆ ਜੋ ਸਥਾਨ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜੋ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਬੇਟਾ ਗਤੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜੋ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ B ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, A ਤੋਂ B ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ A ਤੋਂ B ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਗਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਜੋ ਆ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬਟੇ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁੱਲ ਲਗਾਣਾ, ਕਨਵਰਜਨ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ? 5/18। ਇਹ ਫਿਕਸ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਬੇਟਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਇਹ 5/18 ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਬੇਟਾ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗਤੀ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਸਪੀਡ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਨੂੰ, ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਜਨ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ 5/18। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬੇਟਾ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੀਟਰ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ, ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? 36 ਗੁਣਾ 5/18, 36 ਗੁਣਾ 5/18। ਤਾਂ ਬੇਟਾ 18 × 18, 18 ਗੁਣਾ 36, 2 5 10। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਆ ਗਈ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਗਤੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਨਵਰਜਨ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ 18/5 ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਨਵਰਜਨ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁੱਲ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? 18/15 ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 25 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, 25 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ? ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, 25 ਗੁਣਾ 18/15, 25 ਗੁਣਾ 18/15, 1 5 5 5 5 25। ਤਾਂ 18 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? 90। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ ਗਈ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਤੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ A ਤੇ B ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਬੇਟਾ ਜੋ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਗਤੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਮਾਂ। ठीक है बेटा, मैं आ इरेज कर रहे हैं। तो हम बेटा आप डिस्कस करने लगे हैं समा। ठीक है बेटा, समा। तो बेटा समा क्या होता है, मान लो आ स्थान ए है, आ स्थान बी है। बेटा स्थान ए ते बी दे विच कुछ ना कुछ दूरी होएगी। ठीक है बेटा, स्थान ए ते स्थान बी दे विच कुछ ना कुछ दूरी होएगी। ते इस दूरी नूं जो घंटियां, मिनटां अते सकिंटां विच बेटा ये जो दूरी है ना, इसनूं तय करने विच घंटियां, मिनटां अते सकिंटां विच जो समा अंतराल लगदा है, कि बेटा समा अंतराल, कि बेटा समा अंतराल। समा अंतराल का मतलब की है बेटा, इंग्लिश दे विच समय अंतराल की कहंदे ने ड्यूरेशन, की कहंदे ने ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन समा अंतराल की चीज है बेटा, यानी हुण मान के चलो तुसी आपदे घर बैठे हो, घरों तुसी आपदे स्कूल जाना बेटा, ये कदे होया कि तुसी आपदे घरों इस तरह स्टार्ट किया, उड़ के पहुंच गए? नहीं ना बेटा, तुहानूं जाण दे विच कुछ ना कुछ समा जरूर लगेगा। तो क्योंकि अपने को तो कोई पावर है नहीं, कोई मैजिकल पावर तो है नहीं कि आप बस इत्थों इस तरह किया ना लगमा उत्थे पहुंच गए। कहने का मतलब की है बेटा, एक जगह तो दूसरी जगह तक जाने दे विच कुछ ना कुछ समा अंतराल लगेगा। की लगेगा? समा अंतराल। ठीक है, यानी एक बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस है बेटा, एक स्टैटिक पॉइंट नहीं का भी, एक पॉइंट तो उड्डे ते पहुंच गए। ठीक है, समा अंतराल क्या होता है बेटा, इस चीज को तुसीं समझ चुके होने कि कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस टाइम लगता आपां नूं, उसमें इंग्लिश दे विच की कहंदे ने ड्यूरेशन। तां ये जो आपां नूं समा अंतराल लगदा है ना बेटा, मिनटां, घंटियां, मिनटां ते सकिंटां दे विच स्थान ए तो बी दी दूरी नूं तय करन विच इस नूं ही समा कहा जांदा है, इस नूं ही समा कहा जांदा है। तां बेटा स्थान ए तो लैके स्थान बी नूं पहुंचण विच इस दी दूरी नूं कवर करन विच आपां किसी ना किसी गति नाल चलांगे बेटा, किसी ना किसी गति नाल चलांगे। जेकर अपनी स्पीड जीरो कर दित्ती जावे, स्पीड जीरो होने का मतलब की है बेटा, गति जीरो होने का मतलब की है कि अपनी कोई गति नहीं। जिवें देखो हुण मैं इत्थे खड़ गया, कुछ भी ना बोला बेटा, मेरी की स्पीड जीरो है, तो तुसीं सोच सकते जे स्पीड जीरो होने ते मैं इस ए पॉइंट तो कदे बी तक पहुंचांगा नहीं, तो कुछ ना कुछ मेरी स्पीड होगी, चाहे वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा ही क्यों ना होवे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा ही मेरी स्पीड क्यों ना होवे। जेकर मेरी स्पीड कुछ ना कुछ है तां ही मैं पॉइंट ए तो पॉइंट बी तक पहुंच पावांगा। तो इस पॉइंट ए अते बी विचकार दी जो दूरी है ना, इसनूं तय करन विच मैं किसी ना किसी गति नाल चलांगा, तो जो समा अंतराल मैनूं लगेगा वही की होएगा, समा होएगा। यानी समा अंतराल क्या होंदा बेटा, जिवें 2 सेकंड। ठीक है बेटा, वैसे असल दे विच इस तरह कुछ हुंदा नहींगा, पर फिर भी जेकर कोई एरोप्लेन जा रहा है, उनकी मैक्स दे विच स्पीड हुंदी है, तां उहदा आपां मान सकदे हां। ठीक है बेटा, 2 मिनट, ठीक है 2 घंटे। ठीक है, एक ये बेटा समा अंतराल है, कुछ ना कुछ समा अंतराल बंदे नूं लगदा है। तो इत्थों ही बेटा इसका फार्मूला निकलदा है समय दा। समय दा फार्मूला की हुंदा है बेटा, समय दा फार्मूला की हुंदा है दूरी बटा गति, दूरी बटा गति। इत्थों ही समय दा फार्मूला निकलदा है दूरी बटा गति। ठीक है बेटा, तो मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इक्को ही फार्मूला है इस दे विच गति। गति दा फार्मूला की दस्सिया सी, दूरी बटा समा, है ना बेटा। तो इस दे विचों ही आ जो समय दा फार्मूला निकलिया। ठीक है बेटा, आपां नूं की है आ समा इधर की है बेटा भाग दा, इधर जाके की हो जाएगा गुणा दा, गति गुणा समा बराबर की आ गया दूरी। तो आपां चाहिए कि आपां समय दा फार्मूला कढना सी ना बेटा, तो समा इत्थे रहन देता बेटा, दूरी इधर गुणा दी, इधर जाके की हो जाएगा भाग, जो इधर बेटा गुणा दी चीज होंदी है इधर जाके भाग हो जाती है ना, तो दूरी बटा गति, दूरी बटा गति। तो आ गया बेटा समय का फार्मूला। तो बेटा समय का फार्मूला होर किधरों नहीं आया, गति दे विचों ही आया है। उस तो बेटा अगे दूरी, दूरी
इस तो बाद बेटा आप डिस्कस करनी है दूरी। ठीक है, उम्मीद करता इन्ना तुहानू समझ लग गया होना। तो वीडियो नू पॉज करके तुसी ये सारा नोट करते रहना है ना लगमा। ठीक है बेटा, तो हुण आप डिस्कस कर लेने आ दूरी। तो बेटा दूरी की है, आ पॉइंट ए है, आ पॉइंट बी है। बेटा पॉइंट ए अते बी विचकार दी जो लंबाई है ना टोटल, पॉइंट ए अते बी दे विच जो लंबाई है टोटल, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो इस लंबाई नू तय किया जाएगा, स्थान ए अते स्थान बी दे विचकार बेटा जो लंबाई है किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा जो इस लंबाई नू तय किया जाएगा, कवर किया जाएगा, वो चल के पहुंचेगी ए तो बी तक, इसनू की कहा जाएगा बेटा दूरी। बेटा उम्मीद करता दूरी का तुहानू कॉन्सेप्ट समझ लग चुका होना है। दूरी और कुछ नहीं बेटा, स्थान ए अते बी दे विचकार जो लंबाई है ना जो किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की जाएगी तो उसनू की कहा जाता है दूरी। तो बेटा दूरी का फार्मूला की हुंदा है? ठीक है, दूरी का फार्मूला की हुंदा है? गति गुणा समा, गति गुणा समा। तो बेटा ए वाला फार्मूला भी उथों ही आया है, गति बराबर दूरी बटा समा। ठीक है बेटा, दूरी बटा समा। तो आप फार्मूला कितना करना है दूरी का। ठीक है बेटा, समा इधर भागदा है, इधर आके की हो जाना गुणा का, तो एक हो गया बेटा गति गुणा समा बराबर दूरी। ठीक है बेटा, तो 4 क्वेश्चन ही सिर्फ एक ही फार्मूला है, एक फार्मूला याद कर लो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये तो सी बेटा इसका बिल्कुल बेसिक। तो हुण आप अगे गल कर लेने हैं औसत गति, एवरेज स्पीड की। ठीक है बेटा, जिसके बेस्ड ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, एवरेज स्पीड औसत गति की हुंदी है, हुण आप कर लेने हैं वो डिस्कस। तो बेटा औसत गति, ठीक है, तो औसत गति इंग्लिश के इसनू की कहते हैं? एवरेज स्पीड। ठीक है बेटा, एवरेज स्पीड। तो हुण औसत गति की हुंदी है, मान लो बेटा आ पॉइंट ए सी, आ पॉइंट बी है, आ पॉइंट ए है, आ बी है। ठीक है बेटा, इथों मान लो एक कोई कार है। ठीक है बेटा, आ कार है, आ पॉइंट ए तो चली पॉइंट बी ते पहुंच गई। मान लो इसकी जाने वाली स्पीड सी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जाने वाली इसकी स्पीड सी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ते आन लग्या इस कार की स्पीड सी बेटा, इस कार की स्पीड सी आन लग्या गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने सॉरी बेटा प्रति घंटा लिखना पड़ गया। ठीक है, तो हुण मैं कहां कार दी सॉरी बेटा पहला जाएगा ताई आएगा, कार दी जान, कार दी जान अते आउण दी जो बेटा औसत गति है वो दसो। कार दी जान अते आउण दी की दसो बेटा, औसत गति दसो, औसत गति दसो। ठीक है बेटा, तो कार दी जान अते आउण दी औसत गति का की होएगा बेटा, जो गई जो आई, इसनू आपां जोड़ के जेकर इन्हां दोनों नाल कर दईए भाग तो एक आ जाती है औसत गति। इसका बेटा एक फार्मूला हुंदा है छोटा जा, 2 × AB अपॉन A + B। ठीक है बेटा, औसत गति का फार्मूला क्या होता है? 2 × AB बटा A + B। तो इत्थे A की है बेटा जो जान की स्पीड है उसकी बेटा वो की है A है, कितनी है बेटा 25 किलोमीटर, गुणा B कितनी है बेटा, B की होएगा बेटा आन की स्पीड, उसकी जान की स्पीड 25 किलोमीटर सी, वो A मान लिया आपां बेटा, इन्हां दोनों तो जिन्हों मर्जी A भी मान सकते हो तुसीं, कोई प्रॉब्लम नहीं गी, गुणा 15 बटा A + B, 25 + 15। ठीक है बेटा, तो सोल्व करने ते कितना आ जाएगा, थले कितना आ गया बेटा 40, ऊपर कितना आ गया 50, 500 ते 750 आ गया ऊपर बेटा, ऊपर क्या आ गया 750 आ गया। ठीक है बेटा, ऊपर 750 आ गया, 0 ਨਾਲ 0 कटेगी, 1 चौका चौका, 3 बचा, ऊपरों 5 उतारिया, 9 8 चौका 32, 8 चौका 32 बेटा, फिर बेटा 7 चौका 28, फिर 8 5 40। तो बेटा औसत गति की आ गई अपने को, औसत गति की आ गई इत्थे, औसत गति की आ गई 18.75 किलोमीटर प्रति घंटा, 18.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपने को बेटा औसत गति आ गई। तो बेटा एक कॉन्सेप्ट किस चीज का सी, औसत गति यानी एवरेज स्पीड। तो उम्मीद करना है समझ लग चुका होना। इस तो बाद बेटा इस दे विच एक और कॉन्सेप्ट बचदा है ट्रेन का, वो आप डिस्कस कर लेने, काफी इंपोर्टेंट है।
ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਸ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਰਹੇਗੀ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੋ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। टाइप 1 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮੈਂ टाइप 2, ठीक है बेटा। टाइप 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਰੇਲਵੇ ट्रैक ਆ, ठीक है। ਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ट्रैक ਹੈ ਬੇਟਾ, ठीक है, ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ठीक है बेटा। ਆ ਕੀ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਆ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, मतलब आ ट्रेन की लंबाई मान लो बेटा हैगी है 400 मीटर, 400 मीटर बेटा ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। अते ट्रेन की जो गति है ना बेटा, ट्रेन की जो गति है वो बेटा मान लो तुसी 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है बेटा। 20 मीटर पर सेकंड है। तो मैं तुहानू हाँ ठीक है बेटा, तो मैं तुहानू पूछना बेटा समा पूछना है। एक मिनट बेटा सारा समझाना है कि मान लो आ एक पोल है बेटा, रेलवे ट्रैक है, आ एक ट्रेन आ रही है, ठीक है बेटा। हुण की है, मैं तुहानू कहां आ ट्रेन इत्थे है, इस खंबे नू पार करन विच इस ट्रेन नू कितना टाइम लगेगा, यानी आ जो इंजन वाला हिस्सा है ये इत्थे है, ठीक है बेटा। इत्थों इनू इन्ना तक जाण विच कितना समा लगेगा, यानी एक कोई बेटा खंबा हैगा, ठीक है, रेलवे ट्रैक पे आ इथों ट्रेन जा रही है। ये जो ट्रेन है ना ये 400 मीटर बेटा लंबी हैगी है, इसनू खंबे नू पार करन विच कितना समा लगेगा। तो हुण तो आपां नू जो समा कढण लई बेटा की चाहीदी हुंदी है, समा कढण दा फार्मूला की है बेटा, दूरी बटा गति, दूरी बटा गति। तां अपने कोल दूरी नहीं दित्ती उन्हें, चल गति तां देती बेटा। एक चीज ध्यान नाल देखो तुसी, आ जिहड़ा ट्रेन आ रही सी, आ खंबा सी, आ ट्रेन सी, आ मान लो ट्रेन है बेटा, इन्हें जो खंबा पार करना है, पार खंबा करना है, तो सिर्फ इन्हें अपनी लंबाई ही तय करनी है। खंबे पार करने विच इस ट्रेन ने जो अपनी लंबाई ही पार करनी है। आ जो बेटा ट्रेन सी, इन्हें सिर्फ अपनी लंबाई ही पार करनी है। तो इस केस दे विच की हो जाएगी, लंबाई दूरी की हो जाएगी बेटा, जो ट्रेन की लंबाई होएगी ना, रेल गड्डी की लंबाई होएगी, वो ही अपने कोल दूरी हो जाएगी। वो की हो जाएगी अपने कोल बेटा, रेल गड्डी की लंबाई की हो जाएगी दूरी। तो ठीक है बेटा, दूरी अपने को दूरी कितनी है, दूरी कितनी बेटा 400 मीटर। ते समा कितना बेटा 20 मीटर पर सेकंड। आ 0 नाल 0 कटती, 0 नाल 0 कटती, आ 2 नाल 40 नूं कट्टिया कितना आ गया बेटा 20 आ गया। तो जो समा कितना लगेगा ट्रेन नूं 20 सेकंड। समा कितना लगेगा ट्रेन नूं बेटा 20 सेकंड। उम्मीद करता बेटा एक कॉन्सेप्ट समझ लग चुका होगा तुहानू। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इत्थों ही बनते ने, जिन्ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने ना बेटा, उन्हां दे विच इत्थों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते ने इस कॉन्सेप्ट ते। यानी कदे भी ट्रेन बेटा पार करनी होगी ने, चाहे कहनो एक इंसान नू पार करन दे विच, एक लैंप पोस्ट नू, एक खंबे नू, एक दरख्त नू, ठीक है, या फिर तुहानू कह देन उन्होंने की कहते हैं कोई भी बेटा एक लंबी चीज, सीधी चीज, या फिर तुहानू कह देन कोई भी एक उन्होंने की कहते हैं पोल है, ठीक है, खंबा है, पोल है, ठीक है बेटा, कोई भी एक परछाई है, ठीक है, परछाई पार करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है बेटा। इस तरह कोई भी एक चीज जिसकी आपकी लंबाई नहीं होंगी, ठीक है, कोई भी चीज जिसकी आपकी लंबाई नहीं होंगी, तो उन्होंने पार करने में जो ट्रेन समा लवेगी, उन्हें तय की करना है, सिर्फ आपकी लंबाई ही तय करनी है, ठीक है बेटा। एक कॉन्सेप्ट वन सी, उम्मीद करना है समझ लग चुकी होनी है तुहानू। तो बेटा ठीक है, हुण आपां करते हैं अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस। हुण आपां करते हैं अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस, ठीक है। टाइप 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ट्रेन है, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਆ 400 मीटर लंबी की है बेटा ट्रेन है, ठीक है, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ 800 मीटर लंबा स्टेशन है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ट्रेन जिस दी लंबाई 400 मीटर है, 800 मीटर लंबे स्टेशन ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਵੇਗੀ, कि बेटा कितना समा लगावेगी,
ठीक है। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ बेटा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ठीक है। मान लो आ 400 ਇਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ठीक है। पर हले पार तो नहीं होया बेटा, पार कदों हो जाएगा जो लास्ट वाला हिस्सा इत्थे आ जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह ट्रेन हो जाएगी। तो कहने का मतलब की है, जो आपां नूं कोई एक चीज इहो जी जिवें स्टेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक लंबा कोई नहर हैगी है, इस तरह की कोई चीज दी जाएगी ना जिसकी आपकी लंबाई हुंदी है, जिसकी की हुंदी है बेटा आपकी लंबाई हुंदी है, आपकी लंबाई हुंदी है ते उत्तों ट्रेन की लंबाई तो हुंदी हुंदी है, पता ही है। तो उस केस दे विच आपां की करना है बेटा, जो भी आपां नूं चीज दी जिसकी आपकी लंबाई हुंदी है, जिवें इत्थे की है बेटा रेलगड्डी है, ठीक है, रेलगड्डी तो हर केस दे विच होएगी, प्लस स्टेशन है तो रेलगड्डी ते स्टेशन की लंबाई नूं कर देंगे प्लस एक ही आ जाएगी बेटा अपने कोल दूरी, ते गति आपां नूं दित्ती हुई है बेटा, गति हले मैं लिखी नहीं, चलो गति मान लेने बेटा इसकी हैगी है 30 मीटर पर सेकंड दी है, ठीक है बेटा 30 मीटर पर सेकंड दी है, ठीक है। दूरी बेटा गति हुंदा तो हुण अपने कोल दूरी कितनी आ गई बेटा 8 ते 4 12, 1200 की आ गई अपने कोल बेटा, 1200 मीटर की आ गई दूरी आ गई। ते जो ट्रेन की स्पीड होगी 30 मीटर पर सेकंड है, एक जीरो नाल एक जीरो कटती, 3 चौका 12 जीरो, तो ये कितना आ गया बेटा 40 सेकंड दे विच की है पार कर जाएगी, 40 सेकंड दे विच की कर देगी पार। पता लग गया बेटा, ये समझ लग गई तुहानू। तो बेटा यही कॉन्सेप्ट सी कि फस्ट दे विच की आपां नूं सिर्फ एक वो चीज दित्ती होगी जिसकी आपकी कोई लंबाई नहीं है, जिवें बेटा एक खंबा, ठीक है, एक लैंप पोस्ट, एक लैंप पोस्ट, ठीक है बेटा, एक खंबा एक लैंप पोस्ट, कोई व्यक्ति, ठीक है बेटा, कोई पिलर, ठीक है बेटा, कोई पिलर, या फिर कोई सिग्नल लाइट, ठीक है बेटा, या फिर कोई सिग्नल लाइट। जो बेटा इस तरह दी चीजां दित्तियां होणगियां ना जिन्हां दी आपदी कोई लंबाई नहीं हुंदी, तो उस केस दे विच आपां की फर्स्ट कॉन्सेप्ट लगावांगे, यानी जो दूरी होएगी आपां दूरी की मन्नांगे, कल्ली रेल गड्डी दी जो लंबाई होएगी ओनू आपां दूरी मान लांगे। सेकंड कॉन्सेप्ट दे विच बेटा जिस चीज दी आपदी लंबाई हुंदी है, जिवें स्टेशन ते रेल गड्डी लंबाई, इन्हां दोनां नूं जोड़ दांगे, इन्हां दी जो कुल दूरी आ जाएगी स्पीड नाल कर दांगे भाग, ते अपने को की आ जाएगा समा आ जाएगा, ठीक है बेटा। उम्मीद करना आज का लेक्चर तुहानू समझ लग चुका होना। मेरे को समा थोड़ा घट से तुहानू लग ही रहा होना कि आज सर बड़े फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है बच्चों की 3:30 तो टाइम काफी हो चुका है, मैं उत्थे जाके बच्चों को भी पढ़ाना है, ठीक है। थैंक्स बेटा, ते वीडियो में ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहो, चैनल को सबसक्राइब कर रहे हो, ते बस यही रिक्वेस्ट थी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, टाटा बाय।